So this incident leave a everlasting impact on Kalam's life. Now, the second incident was of a science teacher. Abdul Kalam was very much inspired by his science teacher because that teacher was also we can say that reformer, or he just want to change the society and he just want to break the barriers of society. And that name of that science teacher was Shiv Subramaniam Iyer. Or you can have a question, and in that question you may just have Mr. Iyer or his science teacher. And in last incidents, name of teacher is not given, but you can have in question the new teacher, and here you can have Mr. Iyer or the science teacher. तो मिस्टर अय्यर taught him the lesson of breaking social barriers, कि हमें social barriers किस तरह से तोड़ने हैं या कैसे तोड़ने हैं, कैसे हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं. तो once here is an incident. Once he called Mr. Kalam to his home for food, and his wife was a very orthodox Brahmin lady, and at that moment, at that time, ladies they think that kitchen is very pious, and Annapurna Devi, the goddess of food, she used to live over there. तो वो अंदर किचन में ना चप्पल लेके जाते थे, नीचे ज़मीन पे बैठ के पत्तल में खाना, वो लीव्स होते हैं बनाना लीव्स, उसके ऊपर खाना खाते थे. एंड बड़ा पायस सा वो, बड़ा एक, आजकल तो हम जैसे बेड पे बैठ के डाइनिंग टेबल बैठ के जहाँ जगह मिली वहीं बैठ के खाना खा लिया. एंड when Mr. Ayer's wife, she came to know that a Muslim boy is coming to our house for food, he get very disturbed कि I will not serve food to a Muslim boy, वो मेरी प्योर किचन में बैठेगा, वहाँ खाना खाएगा, पवित्र हो जाएगा, all that. But Mr. Ayer, he didn't listen to his wife. उसने कहा ठीक है, आपको नहीं खिलाना, you can go outside. तो जब कलाम आए तो मिस्टर अय्यर की जो वाइफ है, शी डिडंट केम इनसाइड, शी वाज बिहाइंड द किचन एंड वाचिंग द all the scenario, how Abdul is coming, and how before having the food he just washing his hands and foot and face, and then he just sit on the ground, and he was eating the food very nicely. After finishing the food, he just wipe all the things, all the things around him, and fold the leaf and throw it in the dustbin, and again washed hand. तो ये सारा इंसिडेंस देख के वो बहुत इम्प्रेस हुई कि वो कितना नाइसली सारा काम कर रहे हैं. एंड उन्होंने, जब कलाम ने ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि वो चुप चुप के मेरे को देख रही है, तो व्हेन कलाम वाज लीविंग दैट हाउस, तो जो मिस्टर अय्यर है, शिव सुब्रमण्यम है, उन्होंने कलाम को कहा, कलाम अगेन एट द एंड ऑफ द मंथ यू हैव टू कम टू माई हाउस. तो कलाम जो थे वो थोड़े हेजिटेट करना शुरू कर, बिकॉज ही नोज़ कि इनकी जो वाइफ है उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो ही वो जस्ट हेजिटेटिंग. तो हेयर उनके टीचर ने क्या कहा, यू हैव टू ब्रेक द सोशल बैरियर्स, यू हैव टू ग्रो अप फ्रॉम ऑल दीज बैरियर्स, आपको इनसे ऊंचा उठना है. एंड नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो उनकी वाइफ ने खुद उनको अपने हाथों से खाना सर्व किया. देन व्हेन being grown up, his father permitted him for higher studies. When he finished his basic studies in Rameshwaram, so he just want to do higher studies, but for higher studies he has to go to the main city, and for that his mother was little bit scared कि बच्चे को अकेले कहाँ भेजेंगे, बच्चा वहाँ सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा. But his father, he was having a backbone, or he was just like a backbone for Mr. Kalam. He said that you can go over there, if you want to grow yourself, you have to go outside, go and do whatever you want to do, and send him to the district headquarter. और उसे district headquarter उनको भेज दिया.
हिज फादर रिमार्क्ड, उनके फादर ने क्या कहा था, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे एंड ग्रो, कि मुझे पता है इफ़ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू गो अवे फ्रॉम हेयर, इफ़ यू विल स्टे ओवर हेयर यू कांट ग्रो बाय योरसेल्फ। एंड दस बिगिन द जर्नी फ्रॉम अ कॉमन स्टूडेंट टू अ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और तब जर्नी स्टार्ट होती है कॉमन स्टूडेंट से, एक आम से साइंटिस्ट से, एक कॉमन स्टूडेंट से साइंटिस्ट बनने की, एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने की। एंड अगर आज उनके फादर उनको ये चीज़ ना कहते, उनको कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं हमें नहीं भेजते कहीं पर बाहर, कहीं बाहर जाने की हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दे सेड कि नहीं यार मेरा एक ही बेटा है, मैं उसको बाहर नहीं भेजूँगा, दूर नहीं भेजूँगा, तो क्या होता है कि वी जस्ट स्टे ओवर देयर ओनली, तो हम ग्रो नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अगर कलाम के फादर ने भी ऐसा सोचा होता तो आज हमें हमारा फेवरेट प्रेसिडेंट ना मिला होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।